ever thought that how we are able to look at those stars? No, I have never thought, but now, as you have asked the question, it let me think about it. That how we are able to see that stars. Yes, Jenny, and how I am able to listen to you. Yeah, and how can I look at you? We can touch each other, we can talk to each other, we can listen to each other. How is this possible? I have listened in my school about that there are five senses in our body, like touch, eyesight, and all of these five senses, which we say. And did you know some superhumans also have a sixth sense? Yeah, I know about it. So, my my grandma have told me something about the receptors, but how our five senses work. Have you ever thought about it? Yes, my grandma have told me about that. So, can you please tell me how our body can receive all of that different stimuli and perform all those actions? How can I see you? How can I hear you? How can I see those lovely stars? This all romantic environment? Can you tell me, Jenny? Yeah, sure, I will tell you. Come on, let's go. Let's go to the world of science and let me tell you about the receptors. Okay, so listen to me carefully, Roger. We have receptors in our body with the help of which our five senses work. Okay, so basically, Jenny, I really don't know what is a receptor. Okay, don't you worry, Roger. I will tell you what a receptor is. Okay, what is a receptor? Receptors are basically chemical structures that are composed of proteins that change sensory stimuli into nerve signals that are sent to central nervous system and processed there. Sorry, darling, but I haven't understood anything. Okay, let me explain in simple words. You can see me, you are talking to me, and I am receiving that stimulus. Your talking is like a stimulus for me, and I am receiving it. Okay, did you know any other language in which you can understand it easily? Yes, I can understand all of this easily, Johnny. In Urdu. Can you please explain everything in Urdu to me? Yes, why not? Sure, I will explain everything to you in Urdu right now. ओके सो लिसन टू मी देखो रोजर रिसेप्टर हमारे पास क्या होते हैं हमारे पास हर एक चीज़ के मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं और ये जो है ना ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं कोई भी स्टिमुलस है वो आया उसको रिसीव जिस चीज़ ने करना है ना वो कोई प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है उसे हम रिसेप्टर कहते हैं अब हमारी बॉडी में क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं ना रोजर तो 5 टाइप के रिसेप्टर्स हैं ठीक है अब मैं तुम्हें वन बाय वन सारे रिसेप्टर्स के बारे में बताती हूँ एक है हमारी बॉडी में मैकेनो रिसेप्टर्स देखो जैसे अभी मैं तुम्हें एक थप्पड़ लगाऊंगी ना रॉजर तो तुम्हें पेन फील होगा ठीक है और ये जो मैं चल सकती हूँ और तुम भी चल सकते हो ये जो हमारे मसल्स में स्ट्रेचिंग हो रही है हमारी बॉडी बैलेंस है हम एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं तो ये सब कैसे होता है दीज आर जस्ट बिकॉज ऑफ मैकेनो रिसेप्टर्स Oh wow, yeah, Jenny, you have told me a wonderful concept, man. Yeah, now let me tell about thermoreceptors. You have told me now that this environment is really cold और मुझे बहुत सर्दी लग रही है तो तुम्हें पता है ये सर्दी तुम्हें क्यों लग रही है आजकल ड्यू टू थर्मोरेसेप्टर्स आपकी बॉडी में ऐसे रिसेप्टर्स हैं जिनकी वजह से आप टेम्परेचर में चेंज डिटेक्ट कर सकते हो वो टेम्परेचर कोल्ड भी हो सकता है और वो टेम्परेचर वार्म भी हो सकता है ठीक है अब इसके बाद में तुम्हें पता है कि एक और रिसेप्टर भी है बॉडी में जिसे नोसिसेप्टर्स कहते हैं नोसिसेप्टर क्या चीज़ है जानी नोसिसेप्टर हमारे पास पेन रिसेप्टर्स हैं जैसे कि तुमने मुझे बताया था ना कि तुम्हारी फिंगर कट गई थी यस्टरडे तुम अपने लिए एप्पल काट रहे थे तो हाँ मुझे याद है तो तुम्हें वो पेन क्यों फील हुआ था पेन इसलिए फील हुआ था क्योंकि तुम्हारे बॉडी में नोसिसेप्टर्स है अच्छा थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल नॉलेज अच्छा और तुमने मुझसे पूछा था ना कि जेनी मैं तुम्हें कैसे देख सकता हूँ और रॉजर
तुमने ये क्वेश्चन किया था ना, तो नाउ लेट मी टेल यू, तुम मुझे देख सकते हो, तुम्हारी विजन ये सब कैसे है, ये तुम्हारी आईज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स है, उसकी वजह से तुम मुझे देख सकते हो। ओके रॉजर, तुमने कभी सोचा है कि हमें ये, तुम्हें मेरे परफ्यूम की स्मेल बहुत पसंद है ना, तो कैसे तुम्हें ये फ्रेग्रेंस आती है? ड्यू टू केमो रिसेप्टर्स। या, so all of these receptors, I think you might have understood, तुम्हें समझ आ गई होगी कि मैकेनो रिसेप्टर्स क्या हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स हैं हमारे पास जो कि मैकेनिकल कंप्रेशन को डिटेक्ट करते। अब तुम तो हो थोड़े से डम, रॉजर, डोंट माइंड, बट तुम डम हो ना, अब तुम्हें पता नहीं चलेगा कि हमारे पास मैकेनिकल कंप्रेशन क्या चीज़ है। सो लेट मी टेल यू, जब कोई चीज़ पुश होती है ना, तो हम कह रहे हैं इसमें मैकेनिकल कंप्रेशन आ रही है। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ है उसमें स्ट्रेचिंग हो रही है किसी टिश्यू में, ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसमें अगर स्ट्रेचिंग हो रही है, पुशिंग हो रही है किसी भी जगह में, तो यहाँ पर जो रिसेप्टर्स है वो सारे के सारे मैकेनो रिसेप्टर्स। वैसे तुम टेंशन ना लो रॉजर, आई विल एक्सप्लेन द मैकेनो रिसेप्टर्स टू यू इन अ डिटेल। बट चलो अभी इन बाकी रिसेप्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। जैसे कि अभी तुम मेरी बात सुन रहे हो ना, और जो तुम्हारा ब्लड प्रेशर कभी लो हो जाता है कभी हाई, तो ये सब किसकी वजह से होता है? मैकेनो रिसेप्टर्स की वजह से। अच्छा, तुम्हें मैकेनो रिसेप्टर की समझ आ गई है ना रोजी? यस, वंडरफुल जेनी, वंडरफुल। ओके, तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ थर्मो रिसेप्टर्स। बता दिया ना कि जो तुम्हें अभी सर्दी लग रही हो, गर्मियों में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है, क्यों लगती है? क्योंकि थर्मो रिसेप्टर्स मौजूद है बॉडी में। तो कोल्ड के लिए जो रिसेप्टर्स मौजूद है, जो अभी तुम्हें सर्दी लग रही है उसे कोल्ड रिसेप्टर्स कहते हैं, और जो तुम्हें गर्मी लगती है ना, जब गर्मी का मौसम होता है, उसे वार्म रिसेप्टर्स कहते हैं। ओके, ठीक है। अब ये नोसिसेप्टर्स क्या चीज़ है भाई, ये ज़रा बता दो, इसकी मुझे समझ नहीं आई जेनी। ओके रॉजर, डोंट वरी, मैं तुम्हें अभी दोबारा बताती हूँ कि जब भी कोई फिजिकल या केमिकल डैमेज होता है ना तुम्हारी बॉडी में, कोई भी फिजिकल या केमिकल डैमेज, तो उसको जो रिसेप्टर डिटेक्ट करता है उसे हम नोसिसेप्टर कहते हैं। इसको पेन रिसेप्टर भी कहते हैं। और इसकी एक एग्जांपल बता देती हूँ कि नर्व एंडिंग, जहाँ पे नर्व एंडिंग होगी वहीं पे तुम्हें पेन होगा। जैसे तुम अपने बाल काटते हो ना, तुम्हें कोई पेन नहीं होता रॉजर, ठीक है? क्यों? क्योंकि वहाँ के पे फ्री नर्व एंडिंग्स नहीं है। अगर नर्व एंडिंग्स होती तो बालों के कटिंग पे भी तुम्हें पेन होता। अब अगर तुम अपनी स्किन से अक्सर हम गर्ल्स जब वैक्सिंग करती है तो काफी पेन होता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो हेयर फॉलिकल्स है वहां पे आपके पास फ्री नर्व एंडिंग्स है, नर्व, और वहां पे नोसिसेप्टर्स है, इसलिए पेन होता है जब वहां से पुल करते हैं। बट अगर नीचे से बालों को काटो कोई पेन नहीं होता। दीज आर नोसिसेप्टर्स। अच्छा, और मैंने तुम्हें बताया ना, मुझे तुम देख सकते हो किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स की हेल्प से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स क्या करते हैं? आपकी जो, तुम्हारे जो आई में रेटिना है ना, उसके उसके साथ ये आई आई जो है तो आपकी लाइट डिटेक्ट करती है। जो रेटिना है ना तुम्हारे आंखों का रॉजर, उसमें जो उस पे जो लाइट पड़ती है उसकी डिटेक्शन करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स। तुम्हें पता है ना आइज में क्या है? रोड्स एंड कॉन्स। तो रोड्स एंड कॉन्स की वजह से तुम जो है तो मुझे देख सकते हो, और वही लाइट को डिटेक्ट करते हैं। तो ये तुम्हारे पास क्या हुए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स। अब तुम्हारी बॉडी में जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं या कोई बाहर से हो रहे हैं, और जितनी भी केमिस्ट्री चल रही है ना अंदर, उन सब की डिटेक्शन कीमो रिसेप्टर ने करनी है। चाहे अभी अभी हमने डिनर किया था ना, तो तुमने कहा कि ये जो डिनर था ये सूप बड़ा टेस्टी था, तो तुम्हें कैसे पता चला दैट सूप वाज टेस्टी? वो तुमने टेस्ट किया था ना, इस वजह से। तो जो टेस्ट बड्स है तुम्हारे माउथ में, वो तुम्हारे पास कीमो रिसेप्टर्स हैं। ये जो अभी तुम सांस ले रहे हो और तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन है, ये एक कीमो रिसेप्टर है, ठीक है? उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में, और बहुत सी चीज़ें हैं बॉडी में, बस जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस को रिसीव कर रहे हैं कोई, वो तुम्हारे कीमो रिसेप्टर्स कर रहे हैं, ठीक है? जैसे कि तुम्हारे पास ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, फैटी एसिड्स के रिसेप्टर है, सबके सब हाइपोथैलेमस में लोकेटेड हैं इसके रिसेप्टर्स। और ये रिसेप्टर्स जो है तो या मेड्यूला के सरफेस में या मेड्यूला के अंदर भी मौजूद है, ठीक है? आई होप तुम्हें मेरा छोटा सा बायोलॉजिकल लेक्चर समझ आ गया होगा रॉजर।
हाँ जेनी, इट वॉज वंडरफुल, थैंक यू रॉजर। अच्छा है कि तुम्हें पता चल गया कि तुम मुझे कैसे देख सकते हो, कैसे सुन सकते हो और कैसी चीज़ों को टेस्ट कर सकते हो। थैंक्स टू यू जेनी, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू।